السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں عظما چوہدری۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بولیٹن میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قیام امن کے لیے جو ہو سکتا تھا کیا، ایران اسرائیل کے درمیان کامیاب جنگ بندی کرائے، دوبارہ جنگ کا امکان نہیں، پاکستان بھارت کشیدگی ختم کرائے، مودی پر واضح کیا جنگ ہوگی تو تجارت نہیں کروں گا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین انسان اور متاثر کن شخصیت ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ General from Pakistan was in my office last week. General was very impressive. You know, Prime Minister Modi's. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. جنگ کے آخری 2 دنوں میں ایران سے اسرائیل کو بہت بری مار پڑی، ایرانی بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل میں تباہی مچائی، جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی جیت قرار، ایرانی لوگ شاندار ہیں، امریکہ خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، نیٹو ممالک اپنی دفاعی ذمہ داریاں پوری کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دا ہیگ میں گفتگو۔ I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ جارے ہے۔ پاکستان کا جو موقف تھا وہ اتنا بولڈ تھا اور اتنا دلیرانہ موقف تھا کہ پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب سے اور وزیر اعظم کی جانب سے اور وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بڑا اہم اقدام تھا۔ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بڑا مثبت کردار رہا ہے۔ یہ ناممکن لگتا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا امن خطے میں امن قائم ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ جنگیں کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی، آج الحمدللہ یہ جنگ رک چکی ہے، جس کا تمام تر کریڈٹ پاکستانی حکومت جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں فوری، مؤثر اور متوازن سفارتکاری رنگ لے آئی، خلیجی ملکوں سمیت عالمی برادری وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف، ایرانی صدر کا پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس، نقصان کرنے والی جینکوز کی نیلامی کے دوسرے اور تیسرے مرحلوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت، سمارٹ میٹرز کی تنصیب مکمل کر کے جلد رپورٹ پیش کی جائے، ملک بھر میں الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے قیام کا عمل تیز کیا جائے، عوامی ریلیف اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی اولین ترجیح ہے، محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس، زراعت کی ترقی کے لیے بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، قومی ٹیکنالوجی فنڈ کے منصوبے اگنائٹ کے تحت 129 زرعی سٹارٹ اپس شروع کیے جا چکے، زرعی اجناس ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھانے کے حوالے سے اقدامات تیز کیے جائیں، وزیر اعظم۔ صدر آصف علی زرداری سے آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی ملاقات، سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، قومی مفاہمت، اتحاد اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور، سردار تنویر الیاس کا وفد سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ ابوظہبی میں پاکستان متحدہ عرب امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر اور آئی ٹی میں پیش رفت کا جائزہ، اسٹریٹجک، اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم،
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़े से इस्तिस्ना, मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताअवुन, मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ और 3 अहम मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का पुरअमन हमसायगी के लिए पाकिस्तान की जानिब से भरपूर किरदार की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के वज़ीर तिजारत के दरमियान टैरिफ से मुतालिक वर्चुअल इजलास। तिजारती मुज़ाकरात में अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तिफाक। फ़रीक़ैन बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकतदारी तश्कील दिए जाने पर भी मुत्तफ़िक़। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर अब्बास आफरीदी के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मरहूम सेनेटर के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। मुखलिस और बावफा साथी अब्बास आफरीदी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहम्मद नवाज शरीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे बरतानिया को सराहा। ईरानी पार्लियामेंट की जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के साथ ताउन खत्म करने की मुतफ़क्का मंजूरी। हातमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी की जमानत मिलने तक मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामान मोहम्मद बाकिर। गजा में सिहोनी फोर्सेस के हाथों मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 391 जख्मी। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में फलस्तीनी जंगजुओं के साथ झड़प में 7 इसराइली फौजी मारे गए। शहीद मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मेजर मुईज़ अब्बास जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फितनतुल खारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कौम शहीद मेजर सैयद मुईज़ अब्बास की लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। भारतीय दिफाई अखराजात और खरीदारी में मुसलसल इजाफा। जदीद और मोहलिक हथियारों की भारतीय खरीदारी से जनूबी एशिया के अमन को संगीन खतरात लाहक। भारत इसराइल के ईरान पर हमले की तरह का मॉडल अपनाना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय अज़ाइम से मुकम्मल आगाह है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का दिफा करेगा। बीजेपी हुकूमत की कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त मिटाने की कोशिशें, गिरफ्तारियों, जायदादों पर कब्जे और आज़ादी पसंदों को हिरासा करने की सिविल सोसाइटी की मजम्मत। कश्मीरियों को इंसाफ की फराहमी के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग का नजरबंद हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की अबतर सेहत पर इजहार तशवीश। रूह उल्लाह मेहदी का शबीर अहमद शाह को बावकार तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। रवां साल मानसून बारिशें 25% ज्यादा होने की पेशगोई। बालाई इलाकों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। मलिका कोहसार मरी में धुंध और गरज चमक के साथ बारिश। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। 27 जून को शहर कायद में बारिश की पेशगोई।
मलेशिया में एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप फाइनल में कल पाकिस्तान और भारत आमने सामने। सेमीफाइनल्स में नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम की मेजबान मलेशिया को 2-1 से शिकस्त। भारत ने हांगकांग को 2-0 से हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह बांग्लादेश का दौरा करेगी। दौरे में 3 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 20 जुलाई, दूसरा मैच 22 जुलाई और तीसरा मैच 24 जुलाई को ढाका में होगा। तमाम मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप इंटर मियामी और पाल्मेरास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दोनों के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर। ग्रुप ए में 5-5 पॉइंट्स के बायस दोनों टीम्स ने लास्ट 16 में जगह बनाई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब भी, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएं, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम। इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में क़याम अमन के लिए जो हो सकता था किया। द हेग में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि ईरान इसराइल की दोबारा जंग का इम्कान नहीं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से रास मुनीर को बेहतरीन इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत करार दिया। रिपोर्ट कर रही हैं नमरा सुहेल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी। दी हेग में नेटो सरबराह इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं। पाक भारत कशीदगी के बारे में बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वजीर आजम पर वाज़ेह किया कि जंग रोकें वरना तिजारत नहीं होगी। General from Pakistan was in my office last week. General was very impressive. You know, Prime Minister Modi said, I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमन के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंग बंदी मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईरान और इसराइल के दरमियान दोबारा जंग होगी। They have fought a hell of a war. They fought very hard. I think the war ended actually when we hit the various nuclear sites with the planes. I think they're very much finished. I think Israel's going to get back to doing what they do, and I think that Iran's going to get back. You know, Iran has a huge advantage. They have great oil, and they can do things. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द रूस और यूक्रेन जंग भी हल करवा लेंगे। मुमकिना तौर पर सदर पुतिन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में फोर्दो जोहरी साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। जोहरी तनसीबात सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। ईरान से अगले हफ्ते बात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा भी हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ एतराफ किया कि ईरान इसराइल जंग के आखिरी 2 दिन
दिन में ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हुई। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग शानदार हैं, ये सबके लिए बड़ी कामयाबी है। जंग बंदी ईरान समेत सबके लिए बड़ी जीत है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी ने मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ऐसे नाजुक वक्त में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मुअस्सर और मुतहर्रिक सिफारती किरदार अदा किया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। ईरान और इसराइल की हालिया जंग के दौरान जब न सिर्फ पूरा खित्ता बल्कि आलमी अमन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार था, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अमन के लिए फौरी, मुतहर्रिक और इंतहाई मतवाज़न सिफारती हिकमत अमली अपनाई, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि आलमी ताकतों से भी मुसलसल राब्ते रख कर खित्ते में तनाव कम करने में अहम पेशरफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ रखता है कि मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत के साथ मुसलसल राब्ता रखा और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से 2 बार टेलीफोनिक राब्ता किया। ईरान के सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र खलीजी मुमालिक, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा के अहम नुमाइंदों से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए एक मौसर सिफारती मुहिम चलाई, जिसमें मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक ने पाकिस्तान की तजावीज़ को संजीदगी से लिया और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान की इस सिफारती कोशिश का जिक्र किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक सालसी के लिए सरगर्म न होते तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म को फाल बनाने पर भी जोर दिया ताकि मुस्लिम दुनिया मुश्तरका मौक़िफ़ अपना सके। एक तरफ बड़ी आलमी ताकतें ईरान इसराइल जंग पर खामोश तमाशाई बनी रहीं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में सिफारतकारी के मैदान में कायदाना किरदार अदा करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि अक़वाम की बरादरी में एक नुमायां हैसियत रखता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान इसराइल जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में फौरी, मुअस्सर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का एतराफ़ हर सतह पर किया जा रहा है। खलीजी मुल्कों समेत आलमी बरादरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ़ है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। अवाम ने भी वज़ीर-ए-आज़म की मामला फहमी, बसीरत और दूरदर्शी को सराहा है। पाकिस्तान ने जो सफारती तौर पे भी किरदार अदा किया और इसके साथ साथ हमने एक पड़ोसी का जो किरदार तो अदा किया दुनिया को भी ये एक मैसेज दिया कि जब इस तरह की एक सूरत हाल होगी तो आपने सच के साथ खड़े होना है। इस्लामी दुनिया में एक वाहिद क़ुव्वत है जो न्यूक्लियर ताकत है और उसकी तरफ जो वो पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो ये कई लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत है और उस अहमियत को जब पाकिस्तान की तरफ से बात होती है तो उस बात को सुना जाता है और उसका असर होता है। मुख्तलिफ जो ममालिक है बराह रास्त जो रोल प्ले कर सकते हैं, जिनको करना चाहिए था, उनसे भी पाकिस्तान की बातचीत रही और इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत ईरान की न सिर्फ सफारती तौर पर बल्कि अखलाकी तौर पर जो हमायत की है, मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में एक नई तब्दीली का जो है इशारा है। पाकिस्तान ने सबसे पहले जो बात की है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन की, उसमें पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने ही ड्राफ्ट किया था उसको, और पाकिस्तान के ही इनिशिएट पे वो एक जो है मीटिंग्स कॉल की गई यूनाइटेड नेशन की। अमन की जानिब ले जाने में हमेशा से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनका, तो इसलिए हम यानी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान ने इसमें एक अहम रोल प्ले किया है।
کہ ان دو ممالک کے درمیان سیز فائر ہو اور خلیجی ممالک کے اندر ہمارے جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر اور گریٹر مڈل ایسٹ کے اندر امن کا ایک ماحول پیدا ہو. جنگ ہو رہی تھی ایران اور اسرائیل کی، اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. جو ہمارے ایران بھائی ہیں انہوں نے خوب جد و جہد سے حوصلے سے ان کا مقابلہ کیا. ہمارے آرمی چیف صاحب نے اور میاں شہباز شریف نے خوب ان کی حوصلہ افزائی کری. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی ریلیف اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ آغاز ہے ایک روشن مستقبل کا، جہاں خیالات کوڈ کی زبان میں ڈھل کر مشینوں سے گفتگو کرتے ہیں. اب وقت ہے اپنے آئیڈیاز کو کلاؤڈ کی وسعتوں میں پھیلانے کا. ایک سنہری موقع روشن کل کی جانب. وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی انیشیٹو کے تحت نوجوانوں کے لیے نیو ٹیک لایا سمر آف کوڈ پروگرام جیسا انقلابی پروگرام. تو پھر چنیں اپنے خوابوں کا راستہ. ڈیٹا مائننگ، گوگل یو ایکس ڈیزائن، پروگرامنگ اینڈ ایپلیکیشن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سمیت 20 سے زائد جدید آئی ٹی کورسز حاصل کریں. عالمی سطح کی سرٹیفکیشنز اور بنائیں آئی ٹی کی دنیا میں اپنی پہچان. داخلے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی ریلیف اور صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. اسلام آباد میں بجلی شعبے میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنکوز کی نیلامی کے عمل کو جلد مکمل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے اور سمارٹ میٹرز کی تنصیب مکمل کر کے جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے. بجلی کے ترسیل اور ٹرانسمیشن کے نظام کی بہتری کے لیے مجوزہ منصوبوں پر جلد کام شروع کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، جس سے صوبے کے زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک بھر میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز کے قیام کے عمل کو تیز کیا جائے. قابل تجدید توانائی کے ماحول دوست اور کم لاگت منصوبوں کو جلد مکمل کر کے عوام کو مزید سہولت دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. بریفنگ کے دوران اجلاس کو بتایا گیا کہ 36 آئی پی پیز کے ساتھ بجلی کے نرخوں کے حوالے سے کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ملکی خزانے کو 3.69 ٹریلین روپے کی بچت ہوگی. ملکی صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے.
वज़ीर आज़म को मटियारी, मोरो, रहीम यार खान, गाजी बरोथा, फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा, जिससे पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने फार्म मैकेनाइजेशन की तरवीज के लिए ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्सेस बतदरीज कम करने, जबकि ज़राई अजनास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि ज़राई स्कॉलरशिप पर चीन भेजे जाने वाले अफराद वतन वापसी पर ज़राई शोबे के फ़रोग़ के लिए बतौर एंटरप्रेन्योर काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देंगे। उनका कहना था कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। इजलास में वज़ीर आज़म को ज़राई शोबे में इस्लाहात, बिलखुसूस ज़राई पैदावार में इजाफे, ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की आसान ज़राई कर्ज़ों तक रसाई के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कौमी टेक्नोलॉजी फ़ंड के मनसूबे इग्नाइट के तहत 129 ज़राई स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर ममलकत ऑन सकलैन चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मुनज़्ज़ा हसन ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत वज़ारत मवासलात और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी और तरक्की अफरादी कुव्वत के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में अरकान कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार, चौधरी महमूद बशीर वर्क, नासिर इकबाल बोसाल और अली जान मज़ारी ने अलहदा मुलाकात की। मुलाकातों में मुतालिका हल्कों के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान कौमी असम्बली ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स राना मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर ममलकत बराए पावर अब्दुर्रहमान कांजू और मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, मुशीर चेरखाना जात, सरदार अहमद सगीर, MLA अली शान सोनी और सरदार उमर तनवीर पर मुश्तमिल वफ़द ने कराची में मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सदर मुमलकत ने वफ़द का खैर मकदम किया और उन्हें पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल टालपुर, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम एच मांडवीवाला, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी मोहम्मद रियाज, सरदार ज़ियाउल कमर, ज़ियाउल हसन लंजार, हाजी अली हसन जरदारी और रुकने सूबाई असम्बली सुहेल अनवर सयाल भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने कौमी मुफाहमत, इत्तेहाद और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह में सरदार अब्दुल सत्तार केरियो की रिहाइश गाह पर गए और उनसे उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर ममलिकत ने मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरदार अब्दुल सत्तार केरियो और उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ मरहूम सेनेटर अब्बास आफरीदी के घर गए और अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम सेनेटर की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अब्बास आफरीदी मुखलिस और बावफा साथी थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। एक और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और उनके अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की मुश्तरका सदारत में अबू ज़ैबी में हुआ। इजलास से काबिल खुसूसी मुआवन तारिक बाजवा और UAE के वज़ीर ममलिकत अहमद अली अल सियाग के ज़ेर सदारत वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ। मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, एविएशन, तहफ़्फ़ुज़ खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी इत्तिफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से भी अज़्म का इजहार किया। इजलास में वीज़ा फ्री एंट्री, सरमायाकारी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स और बसूई जहानत और डिजिटल मईशत के लिए ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें 189 शहरों में तामीर और तरक्की के मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के मंसूबे PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की और 16 शहरों में तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे में दुकानों के यकसां डिज़ाइन मुकर्रर करने के लिए बायलॉज बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। लाहौर में स्पीकर सूबाई असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में उन्होंने कहा कि नए बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है, जिसके लिए आइंदा भी कोशिशें जारी रहेंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि वज़ीर आला ने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। उन्होंने अवामी फलाही इक़दामात के लिए कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिवायत को उम्दगी से आगे बढ़ाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानिया हाई कमिश्नर को भारतीय जारियत के बाद अपने दौरे लंदन के हवाले से आगाह किया। जेन मैरियट ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे बरतानिया को सराहा। नेटो के इजलास के हवाले से यहाँ आपको खबर देंगे कि नेटो का 2 रोज़ा सरबराही इजलास नेदरलैंड्स की दारुल-हुकूमत द हेग में दूसरे रोज़ भी जारी है। इजलास में तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान, यूरोपीय यूनियन के अरकान और यूक्रेन के सदर शरीक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सरबराही इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इजलास में नेटो ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात के फ़रोग़ पर गौर किया जा रहा है। नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में तुर्क सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हासिल होने वाले इसराइल और ईरान की जंगबंदी का खैर मकदम किया। इस मौके पर गजा जंगबंदी, दो तरफा ताल्लुकात, बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के वज़ीर तिजारत के दरमियान टैरिफ से मुतल्लिक वर्चुअल इजलास में जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर तिजारती मुआहदे के बाद बाहिमी मफादात पर मबनी एक जामे शराकतदारी तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में फ़रीक़ैन ने तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक खुश उसलूबी से मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। कौमी असम्बली से अहम खबर आपको देंगे कि कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के तमाम 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी की गई है। रिपोर्ट करेंगे फहद जावेद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कटौती की तहरीकों पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसी से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन और जो सारी डिजिटलाइजेशन की इस वक्त एफर्ट हो रही है, उसका मकसद ही ये है कि उसमें शफाफियत लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो लाया जाए और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जाए, बिकॉज दैट इज a sure way of reducing corruption का जो एलिमेंट है, by reducing the human intervention। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। पैदावारी सलाहियत में इजाफा हमारी तरजीह है। यील्ड बढ़ाने के लिए पर एकड़ उसमें हम मैयज ले रहे हैं। उसके लिए ये जो बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने फर्टिलाइज़र की बात की। फर्टिलाइज़र मेरा ख्याल है इस हुकूमत से पहले जिस तरह शॉर्टेज होती थी, जिस तरह प्राइस बढ़ती थी, जब से ये गवर्नमेंट आई है पहली दफा ना सप्लाई फर्टिलाइजर की कोई किसी में उसमें शॉर्टेज आई है, ना उसकी प्राइस में एक पैसा भी बढ़ा है। विफाकी वजीर इंसानी हकूक आजम नजीर तारड़ ने कहा कि PTI की दौरे हुकूमत में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गयी। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलियात देने के लिए कायम नहीं की गई हैं। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, जेल में मौजूद मियाँ बीवी को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें मौके फराहम करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरीयत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई।
वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। 285 इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने वाजे किया कि किसी मुसल्लह जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर आप डंडे लेकर आएंगे और अगर आप मुसल्लह होकर इस्लामाबाद पे हमला करेंगे तो फिर सर ठकाई तो होगी, और ये सर ठिकाई सिर्फ उनकी होती है जो कि हमलावर होते हैं। बाकी इस्लामाबाद पुलिस, मैं दोबारा ऑफर करता हूँ ये स्टैंडिंग कमेटीज में भी, और वहाँ इनके अरकान मौजूद हैं, सिर्फ एक साल में 19% क्राइम कम हुआ है। कौमी असम्बली में कल मुतवक्के तौर पर बजट की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान असेंबली ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। कायदे ईवान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि खुलूस नीयत से आवाम दोस्त बजट पेश किया। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे वकार अहमद की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान असेंबली में कायदे ईवान मीर सरफराज बुगटी का बजट 2025-26 पर बहस समेटते हुए कहना था, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अब चागी है। सेंधक और रेकोदिक कॉपर गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट्स के साथ चागी मादनियात का खजाना है। मंजिल जो है वो अपने आवाम का दिल जीतना है। मंजिल वो है जब बलूचिस्तान के लोगों का एतमाद हुकूमत पे बहाल हो, जब बलूचिस्तान के लोगों को अमन जो है वो मिल सके, बलूचिस्तान के उस बलूचिस्तानी को जो सबसे दरपदर है उस तक हमारे ये रिफॉर्म्स जो हैं वो उस तक पहुंच सकें। जब तक ये सारी चीजें उस तक नहीं पहुंचेंगी तब तक मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बातें होंगी। नए माली साल में 74 अरब सिर्फ टारगेट्स पूरे करने के लिए रखे हैं। चागी में इंडस्ट्रियल एस्टेट और सोलर सिस्टम के लिए 5 अरब, सूबे भर में 1200 नए स्कूल्स, तमाम बुनियादी सेहत मराकज फाल करने, चमन, गवादर, तुरबत और चागी में मीट प्रोसेसिंग प्लांट और 1 माह में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का भी ऐलान करता हूँ। रोड मैप है कि बलूचिस्तान को किस तरह आगे लेके जाना है। जो हमारा प्लान है वो 4 चीजों पर मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर, नंबर 1 इज गवर्नेंस, नंबर 2 इज सर्विस डिलीवरी टू द कॉमन पीपल, 3rd इज PSDP एंड 4th इज लॉ एंड ऑर्डर। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम वज़राए इकराम को ये कह रहा हूं कि विद इन फ्यू मंथ्स आपके डिपार्टमेंट्स में जो जो वैकेंट पोस्टें हैं वो उन गरीब बलूचिस्तानियों का हक है, उन पर मेरिट पे तानियाती की जाए और उनकी भर्ती की जाए। इससे पहले ईवान में 8 खरब 67 अरब के गैर तरक्याती और 2 खरब 49 अरब के तरक्याती मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। मुतालबात ज़र में कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम 10 तहरीकें मुस्तरद हुई। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और बुलेटिन में यहाँ पर कुछ बात हो जाए PSX की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,22,761 की सतह पर बंद हुआ। कराची से रिपोर्ट करेंगे समीर अब्बास। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। रवा माली साल के 11 माह में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 5% इजाफे से 29 अरब 56 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क की तरसीलात ज़र भी अब तक 34 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए तरसीलात ज़र के लिए 38 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है और हुकूमत पर उम्मीद है कि जून में हासिल होने वाली तरसीलात के बाद ये हदफ पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मुल्क की IT एक्सपोर्ट्स में भी 24% इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। सरमायाकार इन अदाद-ओ-शुमार से मुतमईन नजर आ रहे हैं और भरपूर एतमाद के साथ कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है और वहीं फाइनेंशियल मार्केट्स में भी पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से जो मुश्किलात थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। और नियर टर्म में हमें लग रहा है कि अगर सर्कुलर डेथ के हवाले से गवर्नमेंट ने प्लान एग्जीक्यूट किया है, अगर वो एग्जीक्यूशन हो जाती है एंड रिकॉर्डिंग के हवाले से भी कुछ पेमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट यहाँ से फर्दर सर्च करने की भरपूर सलाहियत रखती है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 471 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 273 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 161 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 37 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 28 अरब 3 करोड़ रुपए की लागत के 3,12,000 सौदे हुए, जिसमें 74 करोड़ से जायद के शेयर का कारोबार हुआ। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। 2022 के बाद पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत पर सार्फिन का एतमाद रिकॉर्ड सतह पर। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तानियों की माशी सूरत हाल 9.2% बेहतर हुई है और सार्फिन के एतमाद में
24.6% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। पाकिस्तान कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के 18वें एडिशन के मुताबिक 2024-25 की चौथी छमाही में सार्फिन के एतमाद में 9.2%, जबकि सालाना बुनियादों पर 24.6% इजाफा हुआ है, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तानी अवाम की मालियाती पोजीशन में इस्तेहकाम के साथ मुजमुई मुल्की मुआशी सूरत हाल में भी बेहतरी आई है। सर्वे में सार्फिन की माली पोजीशन, मुल्की मुआशी सूरत हाल, बेरोजगारी और बचतों समेत 4 शोबों के साथ मुस्तकबिल की तवक्कुआत के बारे में अवाम की राय जानने की कोशिश की गई है। गैलप पाकिस्तान के ताउन से किए गए सर्वे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुआशी बहाली के लिए उठाए गए इकदामात के समरात आना शुरू हो गए हैं, जिनकी बदौलत सार्फिन की माली हालत में बेहतरी आई है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। हमारी मुआशी हालत बेहतर से बेहतर हो रही है। कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है, अवाम में क़ुव्वत ख़रीदा बढ़ गई है, अवाम खुशहाल है, आगे से मार्केट में कारोबार हो रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, बिजली में कमी हो गई है। सार्फिन की माली हालत में इस्तेहकाम का इंडेक्स 88 से बढ़कर 96.2 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। मुस्तकबिल के हवाले से इंडेक्स 100 पॉइंट से क्रॉस कर गया है, जबकि बेरोजगारी के हवाले से कुछ हदशात पाए गए हैं। इसलिए इस शोबे में इस्लाहात और रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया गया है। घरेलू सार्फिन की आमदन का इंडेक्स 93.3 से बढ़कर 110 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में आमदन में इजाफे और मालियाती पोजीशन के हवाले से तवक्कुआत के स्कोर में भी 57% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमें इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अपने पूरे वक्त के अंदर बहुत अच्छे काम करके जाएंगे। मईशत अच्छी जा रही है इस वक्त, आप स्टॉक से इनसे हिसाब लगा लें कि कहाँ से कहाँ जा रही है वो, नहीं तो कभी 40-45 हज़ार से ऊपर नहीं गई, जो लाखों पे चली गई है। अदा तो शुमार ये जाहिर करते हैं कि मुआशरे के हर तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा एतमाद में इजाफा 30 साल या उससे कम उम्र के नौजवानों में पिछले साल के मुकाबले में 8% बढ़ा है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिक्र करेंगे कौम के बहादुर सपूत का। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा चकलाला गैरियन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला, सीनियर हाज़िर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान समेत जवानों ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला रिवायात बरकरार रखते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। कौम को अपने बहादुर सपूत पर नाज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की। इजलास में अदालती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के मंसूबे का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मौजूदा दौर में इंसाफ की फ्राहमी का अमल शफाफ, अवाम दोस्त और मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा इंतहाई ज़रूरी है। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट में डिजिटल प्रोग्राम की कामयाबी पर ब्रीफिंग दी गई और इस मॉडल को अदालत उस्मा में राइज करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट बार का भी दौरा किया और वकला रहनुमाओं से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वकला पर जोर दिया कि वो अदालती कार्रवाइयों में डिजिटल फाइलिंग के निज़ाम को अपनाएं ताकि अदालती उमूर की बरवक्त और मौसर तकमील मुमकिन बनाई जा सके। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मुस्तहिक और माली लिहाज से कमज़ोर साइलिन को रियासती अखराजात पर कानूनी मुआवनत फ्राहम की जाए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम आलमी सतह पर बेनकाब। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश खुद भारत के लिए बदनामी का बायस बन गई है। तफसील वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में। भारत ने झूठे इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया और खित्ते को जंग की आग में झोंकने की मुजरमाना कोशिश की। ताहम पहले ही दिन से भारत का झूठा बयानिया आलमी बरादरी की नजर में अपनी साख कायम नहीं कर सका, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के हकाइक पर मबनी मौकिफ को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत की सफारती कोशिशें, गोदी मीडिया की मुनज़्ज़िम मुहिम और आला हुकूमती शख्सियात के बयान भी हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सके। बयानात और अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद के बायस
भारतीय सफारतकारी को भी तनकीद का सामना है। एक जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मगरबी ममालिक पर इल्जामात लगाते रहे तो दूसरी जानिब अमेरिका से मुआहदों के ख्वाहां भी दिखाई दिए। You had no role in India-Pakistan ceasefire, no mention of trade in talks with US. भारतीय जरीदे दी प्रिंट ने मोदी हुकूमत के बयानी का पोल खोलते हुए लिखा है कि भारत ने 40 वर्षों से खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करने की कोशिश की मगर आलमी बरादरी को कायल नहीं कर सका। दी प्रिंट का कहना है कि भारत ने 33 ममालिक में दहशतगर्दी के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया मगर किसी जगह भी काबिल जिक्र तासुर कायम करने में कामयाब न हो सका। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना और बेलगाम रिपोर्टिंग ने भी आलमी सतह पर भारत के बयानी को बेनकाब किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने फौजी माहिरीन के सहारे एक मसनूई हकीकत तराशने की कोशिश की जो जल्द ही दुनिया पर आश्कार होगी। किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। फ्रांसीसी जरीदे एल ओपिनियन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि भारत बयानी की जंग हार चुका है जबकि दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तरजीही बुनियादों पर कबूल किया। आलमी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने भी भारत की ख्वाहिशात को अमरीकी मफादात से मुतसादिम करार दिया और वाज़ेह किया कि कौम परस्ती पर मबनी बयानिया आलमी सतह पर अपनी अहमियत खो चुका है। इस सूरत हाल का नतीजा वाज़ेह है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ को दुनिया भर में सराहा जा रहा है जबकि मोदी सरकार का झूठा और मन घड़त बयानिया आलमी बरादरी में बेनकाब हो चुका है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। भारतीय रियासत मणिपुर में माजूर मुस्लिम नौजवान को बेईमाना कत्ल ने भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जारी जुल्म को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। इसी हवाले से तफसील जानते हैं कराची से सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। भारत जहां अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए जिंदगी दिन ब दिन मजीद गैर महफूज होती जा रही है, वहीं रियासत मणिपुर में माजूर मुस्लिम नौजवान अब्दुल कादिर के कत्ल ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं। मारूफ अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 24 साल अब्दुल कादिर 11 जून को लापता हुआ और 17 जून को उसकी लाश दफन शुदा हालत में बरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल कादिर को एक मुसल्लम ईडी तंजीम के कमांडर लंगजाम खब्बा सिंह बोई ने अगवा किया और बादशाह कत्ल कर दिया। वाक़े पर मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तहम पुलिस ने सिर्फ रस्मी कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनमें बास आम शहरी और आरामबाई टेंगोल के कारकुनान शामिल हैं, लेकिन असल मुलजिम ताहल आजाद हैं। मणिपुर में नस्ली फसादात का दायरा पहले मीटी और कुक्की कबाइल तक महदूद था मगर अब ये मुस्लिम अक़लियत तक फैल चुका है। मई 2023 से जारी कशीदगी में अब तक 200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि 60,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। तशद्दुद, बदअमनी और लाकानूनियत के इस माहौल में भारतीय हुकूमत की मुकम्मल बेबसी और लाताल्लुकी शिद्दत पसंद अनासिर को खुली छूट दे रही है। वाक़े ने अक़लियतों के लाहक खतरात को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इंसानी हकूक के आलमी इदारे और आलमी बरादरी को इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुकम्मल तहकीकात कराए। जिनेवा में चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल और वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस के नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि भारत का ये दावा कि मसला कश्मीर एक अंदरूनी मामला है सरीहन गलत है। ये बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत का मामला है जो कई दिहाइयों से भारतीय कब्जे को भुगत रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त को मिटाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिविल सोसाइटी के अरकान ने श्रीनगर से एक मुश्तरका बयान में 2019 में दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी और हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, कश्मीर के मुनफरिद तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने और जुल्म और जबर के जरिए आबादी का तनासुब तब्दील करने के मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पार्टी ने एक बयान में शबीर अहमद शाह के प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस का हवाला देते हुए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। भारतीय पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन आगा सैयद रूह उल्लाह मेहदी ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक खत में शबीर शाह के लिए मौसर इलाज मुआलजे का मुतालबा किया जिन्हें डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया है। नेशनल कांग्रेस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार किया है कि अगर शबीर शाह को जेल में कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मोदी हुकूमत पर होगी। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा करते हुए कैदियों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक की मज़म्मत की।
اور بلیٹن میں یہاں آپ کو بتائیں گے کہ موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں شدید گرمی کے طویل سلسلے کے بعد بالآخر بارش نے موسم کا مزاج بدل دیا۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت مسلسل 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے متجاوز تھا، جبکہ فضا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے حبس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ شہریوں کو نہ صرف دن کے اوقات میں شدید گرمی کا سامنا تھا بلکہ راتیں بھی گرم اور بے سکون گزر رہی تھیں۔ تفصیل دیکھیے اشفاق خان کی اس رپورٹ میں۔ ماہ جون میں بڑھنے والی یہ شدید گرمی معمول سے کچھ زیادہ رہی۔ سورج کی تپش اور لو کی لپیٹ میں آئی ٹوین سٹیز کی باسی موسم کی تبدیلی کی شدت سے منتظر تھے۔ بارش کے ساتھ نہ صرف درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی بلکہ فضا میں گھٹن کی کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی ریکارڈ کی گئی اور ہوا میں نمی کا تناسب متوازن ہو گیا۔ یہ بارش نہ صرف شہریوں کے لیے ریلیف کا باعث بنی بلکہ فضائی آلودگی میں کمی اور مجموعی موسمی کیفیت میں بہتری کا ذریعہ بھی بنی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی ایک فطری اور متوقع تبدیلی ہے جو نہ صرف ماحول کو تازگی بخشتی ہے بلکہ زرعی سرگرمیوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ زمین کی بالائی تہہ میں نمی کی موجودگی سے فصلوں کی کاشت بہتر ہوتی ہے جبکہ زیر زمین پانی کے ذخائر کی بھی بحالی میں مدد ملتی ہے۔ موسم کی تبدیلی نہ صرف شہریوں کے لیے سکون کا باعث بنی بلکہ آنے والے دنوں کے لیے خوشگوار ماحول کی امید بھی جگا رہی ہے۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے 1 جولائی تک مونسون بارشوں کے پہلے سپیل کا آغاز ہونے کے امکانات ہیں۔ ازکا مقصود رپورٹ کریں گی۔ شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے موسمی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو، واسا سمیت تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ مانسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور جس کی وجہ سے جو حبس کی جو یہ بہت زیادہ کیفیت ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی۔ اور یہ جو بارشوں کا جو سلسلہ جو مانسون کی ایکٹیویٹی ہے تقریباً اگلا پورا ہفتہ ہی جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سفری معاملات اور کاشتکار حضرات اپنی فصلوں کے معاملات موسمی حالات کے مطابق ترتیب دیں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کو کیش ایوارڈز اور فیڈریشنز کو گرانٹ دینے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وفاقی سیکرٹری محی الدین وانی، ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ محمد یاسر پیرزادہ اور کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے والے 36 کھلاڑیوں میں 82 لاکھ روپے کے کیش ایوارڈ تقسیم کیے گئے، جبکہ 22 فیڈریشنز کے نمائندگان کو 6 کروڑ 39 لاکھ روپے کے چیکس دیے گئے۔ جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے اور ان کے کوچ سلمان اقبال بٹ کو 6 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔ سنوکر میں احسن رمضان اور محمد آصف کو 5 لاکھ روپے اور نسیم اختر کو 1 لاکھ روپے کی انعامی رقم ملی۔ اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس اور اسپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کو بھی انعامی رقم دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کیش ایوارڈ کھلاڑیوں کا حق ہے۔ اس سے نہ صرف کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ وہ مزید محنت کر کے نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ یہ ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ اس اکنالجمنٹ کے ذریعے سے گورنمنٹ اور ڈیفرنٹ ادارے جو ہیں وہ یہ احساس دلاتے ہیں اور یہ بات باور کرواتے ہیں کہ انہیں آپ کی اس کوشش کی جو ہے وہ بڑی قدر ہے۔ ایک صحت مند جسم جو ہے اسی میں صحت مند ذہن ہو سکتا ہے اور صحت مند فرد سے ہی صحت مند قوم بنتی ہے، اور وداؤٹ ایکسرسائز وداؤٹ سپورٹ کوئی صحت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ ملائیشیا میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میزبان ملائیشیا کو شکست دی۔ نور زمان اور ناصر اقبال پر مشتمل پاکستانی ٹیم نے 69 منٹ کے مقابلے کے بعد 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔
पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 11-10, 9-11 और 11-9 रहा। फाइनल मुकाबला टॉप सीड भारत और सेकंड सीड पाकिस्तान के दरमियान होगा। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।